بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر بیوی عائشہ حضرت علی سے ساری زندگی ناراض کیوں رہی؟ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت علی کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی سے بات نہیں کی۔ وہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ رہتی کہ ان کا نام تک لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ آخر یہی ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ و حضرت علی رضی اللہ کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ اکرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئی اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ تو دوستو، آخر حضرت عائشہ رضی اللہ اور علی کے بیچ آپس میں یہ ناراضگی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو چلیے پہلے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستقل میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے تیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، لیکن پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ دور چلی گئی تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ جب فارغ ہو کر واپس آئی تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا کہ جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اسی لیے میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ ہار تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف گئی۔ پیچھے صحابہ اکرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ واپس تو آ ہی گئی تھی، لہٰذا حوضت میں بیٹھ بھی گئی ہوں گی، اسی لیے 4-5 آدمیوں نے حوضت کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عمر میں کم تھی اور وزن بھی کم تھا، 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ واپس آئی تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی ہے اور قافلہ جا چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بہت پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف ان کو اطمینان بھی تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اسی لیے آپ رضی اللہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ پر نیند غالب ہو گئی تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام پر لگایا تھا، تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں۔ انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو آپ رضی اللہ اونٹ پر سوار ہو گئی۔ ان صحابی نے مہر پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس میں مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا، اور یہ منافق کہنے لگے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے ان صحابی کے ساتھ کچھ گندا کام کیا ہے، اس وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں صاحبہ حضرت ام مستح رضی اللہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صاحبہ رضی کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بددعا کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا بات کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟
इस पर उन साहिबा ने हजरत आयशा रजी अल्लाह को सारी बातें बता दी कि ऐसा तुम्हारे बारे में सारे शहर में ऐसी गंदी गंदी बातें हो रही हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह फरमाती हैं कि जब मैंने सुना तो ये मेरे दिल को बहुत बड़ा सदमा लगा और जल्दी से घर आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से तशरीफ़ लाए तो मैं आपके सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया, लेकिन चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली। आपकी खामोश निगाहों ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दी थी कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बोझ है और आप मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ ताकि सही हालात का पता चल सके कि आखिर मेरे बारे में कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। तो मैंने घर जाने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमा दिया कि हाँ चली जाओ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि मेरी अम्मी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। परेशान चेहरे के साथ वो मेरे सामने खड़ी हैं। मैंने पूछा अम्मी क्या हुआ, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रही। मुझे कोई जवाब ना दिया और उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा अम्मी मेरे अब्बू किधर हैं, तो उन्होंने चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा कि मेरे अब्बू हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह चारपाई पर बैठे कुरान पढ़ रहे हैं। एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू बराबर गिरते जा रहे थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि जब मैंने घर में भी ऐसा गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत और ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं कि जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरी ज़िंदगी के रखवाले थे, वो भी आज मुझसे नाराज़ हैं। माँ बाप भी आज जुदा हैं। मैं आज कहाँ जाऊंगी? दिल में ख्याल आया कि मैं क्यों ना अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाऊं। इसीलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि मैंने वज़ू किया और घर के एक कोने की तरफ जाने लगी तो अम्मी ने पूछा ए आयशा किधर जा रही हो, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि मेरी बेटी परेशान है, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा फैसला करके खुद को हलाक कर ले। तो फरमाती हैं कि मैंने अम्मी को कहा अम्मी मैं अपने रब के हुजूर दुआएं करने जा रही हूँ। दोस्तों ऐसा लगता है जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह कहना चाह रही थी कि अम्मी हाई कोर्ट तो मुझसे नाराज़ हो गया है, इसीलिए अब मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि मैंने मुसल्ला बिछाया और सजदे में सर रखकर दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि ए मिस्कीनों के परवरदिगार, ए फरियादों की फरियाद सुनने वाले अल्लाह, ए मजलूमों के सहारा, ए कमज़ोरों की सुनने वाले आका, तेरे मकबूल बंदों पर जब भी कोई ऐसा वक्त आया तो ए अल्लाह तूने ही उसकी मदद फरमाई। ए अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया गया था तो आपने एक बच्चे से गवाही दिलाकर उसे बचाया। ए अल्लाह हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम लगाया गया तो आपने ही उसके बच्चे से पाक दामनी की गवाही दिलवाई। ए अल्लाह आज तेरे महबूब की आयशा तेरे दरवाजे पर हाजिर है और फरियाद करती है कि मेरे बारे में भी इसी तरह की गंदी बातें की जा रही हैं, तो ए मेरे अल्लाह तू हुमेरा की मदद फरमा। मेरे शोहर ने भी इस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया है। अब आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं जो इस कमज़ोर को तसल्ली दे सके। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह रो रो कर दुआएं कर रही थी। उधर दुआएं मांगी जा रही थी और उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में एक मजलिस मुसावरत कायम की हुई थी कि जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह के वालिद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के अलावा बाकी सारे बड़े बड़े सहाबा इकराम मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके बीच गमज़दा बैठे हुए थे। सहाबा इकराम के चेहरों पर उदासी थी क्योंकि वो अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गमज़दा देख रहे थे कि जिसकी वजह से सहाबा इकराम की भी तबीयत कुछ अजीब सी हो चुकी थी। इसीलिए कुछ सहाबा इकराम तो सिसकियाँ ले लेकर रो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से पूछा कि इस मामले में तुम मुझे क्या मशवरा देते हो। तो सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने आगे बढ़कर कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत और सफारत बख्शी है कि आपके बदन पर किसी गंदी मक्खी को बैठने की भी इजाज़त नहीं है। जब अल्लाह ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया है कि आप पर एक गंदी मक्खी को बैठने की इजाज़त नहीं है, तो आपकी जीवन साथी ऐसा कैसे हो सकती है कि जिसके अंदर गुनाहों की गंदगी हो।
इसी लिए मुझे तो ये चीज बिल्कुल झूठ नजर आती है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह से पूछा कि ए उस्मान, तुम क्या कहते हो? तो दोस्तों, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ने उस वक्त नबूवत की सोहबत का हक अदा कर दिया था। उन्होंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया कि बादल आपके सर पर साया किए रहते हैं, आपका साया जमीन पर नहीं पड़ता, कि ऐसा ना हो कि किसी का कदम आपके साए पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया है कि किसी गैर के कदम आपके साए पर ना पड़ सके, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी को आपकी पाकिज़ा बीवी पर काबू हासिल हो जाए कि वह उनके साथ गलत काम कर सके। लिहाजा यह चीज़ तो हमारे वहमो गुमान में भी बाहर है कि अम्मा आयशा के साथ ऐसा कुछ हुआ है। उनकी बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रजी अल्लाह से पूछा कि ए अली, तुम इस मामले में क्या कहते हो? तो हज़रत अली ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, एक बार मैंने देखा कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खबर नहीं थी। इसीलिए आपने जब उन जूतों को पहनना चाहा तो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर आपको इत्तला दी कि आपके जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई है। तो ए अल्लाह के रसूल, जब जूतों पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया, तो अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों ना बताया जाता? इसीलिए मुझे यह बात बिल्कुल ठीक नज़र नहीं आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हज़रत अली रजी अल्लाह दोबारा कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा गमज़दा है तो आप चाहें तो आयशा को तलाक दे दें। आपके लिए बीवियों की कोई भी कमी नहीं है। अल्लाह ताला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देंगे। उनकी ये बात सुनकर हज़रत उमर रजी अल्लाह तड़प उठे और खड़े होकर कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, आप ये इरशाद फरमाइए कि आयशा से निकाह आपने अपनी मर्जी से किया था या आपको अल्लाह ने कहा था कि आयशा से निकाह करो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके बताया कि ये हुक्म मुझे अल्लाह की तरफ से हुआ था कि आयशा से निकाह करो। तो इस पर हज़रत उमर रजी अल्लाह फरमाने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अब आप मुझे छोड़ दीजिए और इन मुनाफिकों को छोड़ दीजिए। मेरी तलवार जाने और मुनाफिकों की गर्दन जाने। वो अल्लाह की पसंद की औरत के बारे में ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं, मैं उन सभी की गर्दनें उड़ा दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हज़रत उमर को मोहब्बत की निगाहों से देखकर हज़रत उमर के गुस्से को ठंडा किया। दिल से गोया कह रहे हो कि ए उमर, अल्लाह तेरा निगहबान हो, तूने मेरे गम को हल्का कर दिया। हज़रत उमर की ये बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को इत्मीनान आ गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठकर घर चले गए। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के घर गए ताकि मालूम करें कि मेरी आयशा किस हाल में है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे। इसीलिए घर पहुंचकर आपने दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की अम्मी ने दरवाज़ा खोला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और फिर घर के अंदर आकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह की तरफ देखा तो उनकी आंखें भी रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। आपने पूछा कि आयशा कहाँ है? तो अम्मी ने घर के एक कोने की तरफ इशारा कर दिया। उस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह सजदे में पड़ी रो रही थी। बाद में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में तशरीफ़ लाए तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके कदमों में चिमट जाऊं और जी भरकर रो लूं कि ए मेरे हबीब, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या आप अपनी आयशा को ऐसे छोड़ देंगे? मगर मेरे दिल ने कहा कि ए आयशा, तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, अब अपने रब से ही मांग ले, तेरा रब तेरा निगहबान होगा। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा कि ए आयशा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने सजदा पूरा किया और आकर चारपाई पर खामोशी से बैठ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही बैठे हुए थे। आपने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा कि ए आयशा, अगर तुझसे हकीकत में कोई ऐसी गलती हो गई है तो अपने रब से माफ़ी मांग ले, तेरा रब गुनाहों को बहुत माफ़ करने वाला है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि उस वक्त तक तो मैं सब्र के साथ बैठी रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी तो मेरे बर्दाश्त की बांध टूट गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बैठी रोती रही मगर खामोश थी। आखिर रोते हुए मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं वही बात कहूँगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कही थी कि मैं अपना दर्द सिर्फ अपने रब से बयान करता हूँ, क्योंकि ए अल्लाह के रसूल, आज अगर मैं कहूँगी कि मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया तो आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, और अगर मैं कह दूंगी कि मैंने ऐसा काम किया है तो आप लोग फौरन मेरी बात मान लोगे। इसीलिए मैं अपने अल्लाह से ही फरियाद करती हूँ, वही मेरे लिए कोई निजात का रास्ता निकालेगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि मैंने ये अल्फाज कहे और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे थे और आपके अंदर एक हसीन कपकपी देखी जो वही नाजिल होते वक्त हुआ करती थी। फिर अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी होने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल ली। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी, दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर देंगे या नींद में कोई ख्वाब दिखा देंगे कि मैं बेगुनाह हूँ। मगर मेरे माँ बाप उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा तो वो तड़प रहे थे, वही नाजिल हो रही थी। पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फैसला हो। वालिद की आंखों में भी आंसू थे और अम्मी भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। हजरत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त जब मैंने आपके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरी बराअत नाजिल कर दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि उस वक्त मेरी अम्मी कहने लगी कि ए आयशा उठो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करो। लेकिन हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ अल्लाह की तरफ थी, तो मैंने कहा कि मैं किसी का शुक्रिया अदा नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगी। उसी ने तो आज मुझे बचाया है, आप सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की पाक दामनी में पूरी 18 आयतें नाजिल फरमाई। यही नहीं कि सिर्फ हज़रत आयशा को बेगुनाह फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से फरमाया कि ए आयशा, तुम्हें इतने दिनों तक जो तकलीफ़ों में रहना पड़ा उसके बदले में तुम्हारे लिए मगफिरत और बड़े अज्र का वादा करता हूँ। दोस्तों, उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फिर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाकर रहने लगी। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह को सारी ज़िंदगी हज़रत अली से एक शिकायत रही, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा इकराम को जमा करके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह के बारे में मशवरा किया तो सभी बड़े बड़े सहाबा इकराम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की पाक दामनी की गवाही दी और आखिर में हज़रत अली ने भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की पाक दामनी की गवाही दी। लेकिन जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा उदास देखा तो ये बात भी कह दी कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आपको आयशा पर शक है तो आप आयशा को तलाक दे दें, उनकी जगह आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें। तो ये बात जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह को पहुंची कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे तलाक देने का मशवरा दिया है और कहा है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फिर हज़रत अली से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि सारी ज़िंदगी कभी भी उनसे बात नहीं की। दोस्तों, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान किया जाएगा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह इसी नाराज़गी की वजह से उनके और हज़रत अली के दरमियान एक ऐसी जंग हुई कि जिसमें हज़ारों सहाबा इकराम एक दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़े हो गए और फिर पूरी रात वो जंग चलती रही और सहाबा इकराम एक दूसरे का खून बहाते रहे, यहाँ तक कि सुबह होते होते हज़रत सहाबा इकराम शहीद हो चुके थे। हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। दोस्तों, आज का ये छोटा सा वाकया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।